نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة بقرة آية number 203. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ترجمہ اولئک نہیں وذکرو اور یاد کرو اللہ کو فی ایام معدودات دنوں میں گنے چنے فمن تو جو کوئی تعجلا جلدی کرے فی یومینی دو دو دنوں میں فلا تو نہیں اتنا کوئی گناہ علیہ اس پر ومن اور جو کہ تاخر تاخیر کرے فلا تو نہیں اتنا کوئی گناہ علیہ اس پر اس کے لمن اس کے لیے جو تقوی کرے واتقوا اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم الیہ بے شک تم اسی کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پچھلے جب ایام معدودات کا نا ذکر وہاں پر بھی آیا تھا جب رمضان روزوں کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر حج کے ذکر پہ بھی کہا گیا فی ایام معدودات یہ دن ہیں گنے چنے، اس لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان دنوں میں تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھی جائیں، اسی لیے جب جو لوگ نہیں بھی جا پاتے جو تو آف کورس گئے وہاں پہ تو وہ وہاں پر ماحول اس طرح کا بنا ہوتا ہے تو سب اونچی آواز میں بھی آہستہ میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ بھی یہاں پر ان دنوں خاص اہتمام کیا جاتا ہے گھروں میں بھی لاؤڈ تھوڑا سا اسپیکر لگا کے تاکہ سب پڑھتے رہے، تکبیر بھی تحلیل بھی۔ اور یہاں پر ہے نا کہ جلدی آ جاؤ فی یومن تعجل فی یومن ان دو دنوں میں جو ایام تشریق ہے 11 12 کے بعد واپس آنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں، اور جو دن اللہ تعالیٰ سفر کی خاطر ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو گنے چنے ایگزیکٹ ورڈ ہیں یہ ایام تشریق کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ اگر وہ رکنا چاہیں ان دنوں میں تو بھی کوئی گناہ نہیں، نہیں رکنا چاہتے واپس آنا چاہتے 11 12 دن کے بعد تو بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور یہاں پر ایام تشریق میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا ایک اور یہاں پر مناسک حج ادا ہوتا ہے نا یہ جو جمعرات کو کنکریاں ماری جاتی ہے زوال آفتاب کے وقت، تو وہ ذکر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ جمعرات کی بھی جمعرات کو کنکریاں مارنا بھی وہاں پہ مخصوص عمل ہے۔ اور نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تکبیرات خاص طور پر نماز کے قریب اور کنکریاں مارتے ہوئے، انفیکٹ وہ قربانی کے وقت بھی جتنے بھی حج کے دنوں میں جو جو مواقعات ہیں ان سب میں وذکورو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ انفیکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہم ہے یہ دن کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے ہیں۔ کھانے پینے سے مراد اس طرح سے جس طرح ایک تو رمضان ہے نا تو وہ تو ایک روزے کا دن ہے، اس کو کھانے پینے سے روکنے کے دن کہا گیا، مگر یہ جو دن آتا ہے قربانی گوشت ہوتا ہے
तो ये दिन खाने पीने के हैं, और यहाँ तशरीक ऑफ कोर्स ये दिन खाने पीने के भी होते हैं, कुर्बानी हो चुकी होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करना होता है। और कोई काम भी नहीं होता इन दिनों में। एक तो ऑफ कोर्स ईद है, दूसरा हज के मौके पे वहाँ पर फारिग है, कोई काम नहीं है उस टाइम पे होता। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा उन दिनों जिक्र असकार करना चाहिए। तो यहाँ पर इख्तिलाफ रहा है कि मतलब इन्होंने कहा है ना कि कोई जल्दी जल्दी कर ले या फिर ठहरे या ताखीर कर ले। तो इनमें जो है इख्तिलाफ ज़रूर आता है, मगर असल बात क्या है, जिक्र करना और अल्लाह ताला के लिए तकवा इख्तियार करना। अ, जहाँ वहाँ जाना अल्लाह ताला के लिए खालिस होना चाहिए, नमूद नुमाइश में से नहीं होना चाहिए। और क्योंकि अल्लाह ताला का जिक्र भी तो उसी वक्त कबूल होगा जब अल्लाह ताला के लिए खालिस होगा। और अल्लाह ताला से डरेंगे तो ही हज जो है हमारा गरूर का जरिया नहीं बनेगा, और तकवा भी हासिल होगा, जो अल्लाह ताला फिर दिलों को रोशन कर देता है जिससे। अगर दिखावे में और सिर्फ शो ऑफ में अगर लगे तो हमारा तकवा दिल से ख़त्म हो जाएगा। ये खुद फील कीजिएगा, जब तक हमारी जो चीज़ कोई नीड की छुपी हुई होती है ना, आपके दिल की कैफियत और होती है। जब आप दूसरे को थोड़ा शो करोगे ना, फिर आपके ज़्यादा ध्यान ही होगा कि मैं अगले बंदे को किस तरीके से बता सकता हूँ। तो वो सारा फोकस आपका निकल जाएगा, और जो आपके दिल में खुशू हो जो था वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नेकी जो है वो कभी भी आपके गुरूर से ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि जो एफर्ट भाग दो आपकी है, माल के अलावा जो आपकी जिस्मानी एफर्ट्स होती हैं, तो उस नेकियों को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हज के मौका में सब इकट्ठे होंगे, इसी तरह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको इकट्ठा करेगा। इलैहि तुहशरून। इलैहि तुहशरून। सब वहां पर इकट्ठे किए जाएंगे जिस तरह से हज के मौका पे इकट्ठे होते हैं। मैंने अरफात में लोगों का हजूम कभी देखा हो तो कितना ज्यादा रहता है ना। तो ये क्यामत का एक छोटा सा मंजर है, बिल्कुल एक माइनर सा। वहां पर तो ऑफ कोर्स कितने सारे के सारे लोगों को, जब से दुनिया बनाई है तब से लेकर अब तक, जब तक दुनिया खत्म होगी तब से जो मर चुके हैं वो सारे उस टाइम जिंदा होंगे। तो ये जस्ट एक छोटा सा सैंपल, एक व्यू है यौम अरफात का, और मैदानी अरफात और मैदान मीना का। खासतौर पर जब मीना में कंकरियां मारी जाती हैं तो कोई साया नहीं होता। और ज़वाल आफताब से पहले मारना होता है कि जब सूरज तेज भी होता है और रश की वजह से और गर्मी हो जाती है। फिर वहाँ 7 कंकरियां मारना, फिर एक जुमरे के बाद दूसरे जो जुमरा, बिल्कुल पैदल जाना, कोई सवारी नहीं, फिर अपनी रहाइश गाह तक पैदल। इससे ज़्यादा मुश्किल दिन भी नहीं कोई हो सकता। एक कंकरियां मारते हुए लोग छुप जाते हैं, गुम भी हो जाते हैं। इनफैक्ट वहां पर कितने ही हादसा इस तरह से रहते हैं कि रुक गया तो वो अलावा फिर गिर जाता है, फिर हलाक हो जाता है। अल्लाह ताला वो वो नहीं रहता जिंदा फिर। इस तरह से फिर हशर के दिन भी कोई किसी को नहीं पहचानेगा, किस तरह से बीच में गुम हो जाए, गायब हो जाए, दब जाए। वहां भी अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। ये बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल है। और ये जो सफ़र है ना, अल्लाह ताला ने ये हज का सफ़र, ये हम तज़किया नफ्स के लिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े और बुरे फेल से यहाँ पे मना किया गया ना। भूख प्यास से इंसान का कितना बुरा हाल हो जाता है कि इनफैक्ट जो मिले वही खाना पड़ता है, और मिजाज में भी तल्खी आ जाएगी ऑफ कोर्स। तो इस सूरत में दूसरों को अजियत ना देना और धक्के ना देना, ये सब हमारी ट्रेनिंग है उस मौके पर, उस इबादत के टाइम पर। तो इत्तेफाक और इत्तेहाद की ट्रेनिंग, क्योंकि वहाँ हर जगह के लोग होते हैं। तो गैर मामूली चीज़ें देख कर इंसान जो है वो एक तो इतनी टफ कंडीशन में होता है, दूसरा एक गैर मामूली सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ लोगों के मजाज नहीं मिलते। ये बिल्कुल आप लोग अपनी लाइफ का वो मोमेंट याद कर ले, कभी ऐसे इंसान के साथ आपका वास्ता पड़े जिसका आप जिसके साथ बैठना, इनफैक्ट बात करना आपके लिए बस हो के अब मैं इससे कभी बहुत जल्दी जान छुड़ा लूं,
मुझे उसके साथ बैठना ना पड़े, मुझे मुझसे बात ना करे या मजीद ना बात करे। जस्ट एक लम्हे के लिए ना आप वो वाली कंडीशन याद कर लें, अगर आपके साथ कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो बिल्कुल वही सोचिए कि अब वो बंदा आपके साथ है। और क्योंकि वहाँ पर तो ऑफकोर्स डिफरेंट एरिया से हर तरह के हर मिजाज के लोग होते हैं। और गर्मी की शिद्दत है, हजूम है, कोई साया नहीं है। वो तो अब जाकर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें एयर कंडीशनर जो है वो अप्लाई किए जा रहे हैं, जैसे शावर्स होते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, बट फिर भी गर्मी वहाँ पर स्टिल होती है। जो मुशक्कत और सफोकेशन है ना, अगर आप एक कमरे में फुल एसी करके भी पूरी फैमिली की गैदरिंग कर लो ना, वो पूरा कमरा भरा हुआ हो, तो इस एसी की भी कूलिंग कुछ कहती नहीं है। और तो वो तो फिर हमारे एसी तो एक बंद कमरे में होता है ना, बाहर तो वहां पर तो एक खुला इन्वायरमेंट है। तो कितना उधर फर्क पड़ सकता है, जस्ट एक माइनर सा परसेंटेजेस में फर्क पड़ता है। कहा थे, अच्छा, इसलिए खुद के साथ साथ वहां पर हमारे इखलाक की ट्रेनिंग में ये भी आता है कि अपने मुसाफिर का भी ख्याल रखना है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु हज करवाते थे लोगों को, और लोगों को कहते थे जो हज पर चलेगा अपना पैसा जमा करो, करवाओ। फिर सारे हज में उनका ख्याल रखते थे। लाइक उनकी जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, ज्यादा राह भी लेकर साथ जाया करो, तो वो पहले ही सारे पैसे खुद जमा कर लेते थे और सारे मुसाफिर का ख्याल खुद रखते थे। और आखिर में इनकी चीजें इनको वापस कर देते और कह देते कि ये मेरी तरफ से हदिया है। और वो उसको बेहतरीन सदका समझते थे। लोग अपने तरफ से तो सारा सफर इजी होते थे कि अच्छा हम लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं, उसी की वजह से हमें सब कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं। दैट वो क्या करते थे, वो एक अपनी तरफ से भलाई इस तरह से करते थे कि लोगों से पहले तो पैसे ले लेते, उसके बाद वापस उनको एग्जैक्ट कर देते। और जो भी उन जो एक्सपेंस होते थे वो अपनी तरफ से करते थे। एक लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते में लेकर जाते थे और फिर उन पर खर्च भी करते थे। अकीदा तो ही पकता ही तब होता है जब काबा को देखकर उसकी अजमत और बड़ाई नजर आती है। तब मोहब्बत दीवानगी शौक का जो असल मोहब्बत है ना दीवानगी, वो उस खाना काबा को देख के उसका सफर है। क्योंकि वहाँ खाने पीने और जिक्र के अलावा और कोई काम तो होता नहीं है। तो हमारे जज्बात की ट्रेनिंग होती है वहाँ कि हम लोग हद से भी ना बढ़े, और इज्तमाहीयत सिखाते हैं कि मिलजुल कर ज्यादा लोगों के साथ कैसे रहें और काम करें। इसलिए एक हदीस का मफहूम है कि तुम्हारा जहाद हज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये औरतों को कहा था, कि हज भी एक मुशक्कत वाली इबादत है। इसलिए यहाँ पर कुछ मामला ऐसे आते हैं कि कुर्बानी के पैसे हम लोगों को पैसे ट्रस्ट को नहीं दिए जा सकते। आपको वहीं पर देने जहाँ पर पता है कि ये कुर्बानी यहाँ पर ली जाएगी। बजाय इसके कि ट्रस्ट में देके कि आप ये कहें कि हम लोग कुर्बानी के पैसे थे, इस वक्त ज़रूरत किसी को किसी चीज़ की है तो हम उसको बोले दें। नहीं, कुर्बानी का मतलब कुर्बानी ही है, जानवर की कुर्बानी है। उसमें हम लोग किसी की मदद बेशक जितनी मर्जी ज़रूरत है, अगला बंदा शादी के मामला तो होते हैं बाज़ दफ़ा, मतलब जो इस तरह से मदद करते हैं, या फिर फीस के मामला है, जितनी मर्जी ज़रूरत है, लेकिन जो कुर्बानी है वो कुर्बानी ही है। इनफैक्ट अगर कोई हॉस्पिटल का भी अगर बहुत सीरियस केस और आप वहाँ पर पे करना पड़ जाए, तो वो आपकी कुर्बानी की नीयत नहीं काउंट होगी, वो आपका सदका ही वहाँ पर गया है। कुर्बानी आपकी वो काउंट नहीं होती। च- आगे है, अब इन अन्नासे और लोगों में से कोई मन जो योर जेबू का खुश करती है आपको, कौलहू बात उसकी फिल हयात जिंदगी में दुनिया दुनिया की, वयुशहिदु और वो गवाह बनाता है अल्लाह अल्लाह को, अला ऊपर माँ उसके जो फिर कल्बी इसके दिल में है, वह अलद्दुल खिसाम हालांकि वो सख्त झगड़ालू है और झगड़ा करने में। अरे यहाँ पे ना और स्टार्ट हो गया है उसका जो है ना इसमें नहीं है, जस्ट अ सेकेंड।
एक बात ज़ईफ़ आयत में के मुताबिक आता है कि ये आयत ना एक मुनाफिक अखनस बिन शरीक के बारे में नाज़िल हुई थी। अ, लेकिन सही तर बात यह है कि इससे मुराद सारे ही मुनाफिकीन और मुतकब्बिरीन हैं जिनमें इस तरह की सिफ़ात पाई जाएं जो कुरान ने उसके ज़मन में बयान की। कैसी सिफ़ात? वो ऐसी कि लोगों की दुनियावी गर्ज की बातें आपको खुश कर देती और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह ताला को गवाह करता। अ, मतलब वो लोगों के सामने दुनियावी बातें करता और दिल में कि मतलब मैं मेरी नीयत तो ऐसी नहीं है ना, मेरे दिल में तो नहीं ना मैं ऐसा सोचता। और हालांकि वो दरअसल जिगरालू होता था। अच्छा, इसकी ना तफसीर मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगी। ये यहाँ पर मैंने लिखी शॉर्ट है। बाय दफ़ा लेक्चर लेते हुए सब लगता है कि मैं समझ आ गई है, तो मैंने यहाँ पर लिखी शॉर्ट हुई है, तो मैं इसको डिटेल में आप लोगों को कल इंशाल्लाह बताऊंगी इस वाक्य की तफसील। अभी के लिए इतना काफ़ी है। मैं तिलावत लगाती हूँ। तर्जमे पे गौर करना अपने। واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجب ऐसा था कि आयत ना लंबी थी थोड़ी, तो मुझे लगा कि शायद आज पूरे हाफ एन आवर में ये कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए मैं आगे नेक्स्ट नहीं उसको प्रिपेयर किया था। तो इंशाल्लाह फिर मैंने नेक्स्ट इसको प्रिपेयर करके नेक्स्ट आयत को फिर मैं कल इसकी इंशाल्लाह तशरीह करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो लाजमी अपनी दुआओं में शामिल कर लें हज की तौफीक को, कि अल्लाह ताला हमें हज की तौफीक दे और हम उसको सही तरीके से सही मानों में अदा कर सकें। बाज़ दफ़ा हम लोगों को ना कभी कभी इत्तेफाक होता है मस्जिदों में जाने का, नमाज के लिए या दर्स के लिए। कभी वैसे ही मदरसे में जाना हो जाता है, मगर ऐसी जगहों पर कोई आपके पास ऐसा इंसान बैठ जाए जो बहुत उसकी ख़राब नेचर हो और आपका उस बस आज उसका आपसे ना मिलता हो, या बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो, या आपको थोड़ी थोड़ी बात टोकने वाला हो, आपको सुनने ना दे, आपको नमाज ना पढ़ने ना दे, या इनफैक्ट वो कोई बच्चा जो मस्जिद में आप नमाज पढ़ने गए हो तो वो बच्चा आपको बार बार तंग कर रहा है, आपके जो खुशबू है वो वहाँ पर नहीं रहने दे रहा। तो ये सब एक इम्तिहान है कि उस टाइम पे देखें आपका रवैया उस टाइम पे क्या होता है। अभी हम लोग हज पे तो नहीं गए। अभी हम लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं हम रोजे से नहीं होते, हम किसी गर्मी में नहीं होते, हम किसी मुशक्कत में नहीं होते, हम मदरसे में भी बैठे हैं तो किसी हम लोग बैठे हुए हैं आराम से सुकून से। पंखा भी फोर्स लगा होता है, बाज़ दफ़ा एसी भी लगे होते हैं। बट ऐसा बंदा आपके पास बैठ जाए तो आपका उस टाइम क्या रद्द अमल होता है, जस्ट इमेजिन दैट। इसलिए इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध लें कि आप इंसान कहते हैं ना जिसने जन्नत में जाना होता है तो वो उस तरह की क्वालिटीज अपनाते हैं। अगर हज पे जाना है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वहाँ पर आपकी इखलाकी ट्रेनिंग हो रही है, तो उसको वाकई में अपने लिए अ, इस तरह से बनाना है, अपने आप को ट्रेन करना है कि जब आप हज पे जाएं वहाँ पर कोई आपको मुखालिफ मिजाज के लोग मिलते हैं तो आप वहाँ पर अल्लाह ताला का सब्र शुक्र करके किस तरह से उस हज के सारे मनासिक को अदा करेंगे। इसलिए अभी से अपनी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे इस अमल को हमारे हज के ले जाने का सबब ज़रूर बनाएगा इंशाल्लाह ताला। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।